in Gwalior. First, I would like to thank you all for joining us today. I, Shikha Sharma, on behalf of Prestige Fraternity, would like to welcome you all in today's session. We are to announce the completion of 23 successful years of PIMG. During the course of our journey, we touched new heights in terms of educational and professional performances. I would like to give you a glimpse of some of our accomplishments and key highlights of our illustrious journey over the last 23 years. Now, I would request Professor Ashwini to kindly share the introduction video of PIMG with the August gathering. Please, sir. Yes, visible, sir. Ashwini, the sound is not there. No. I think volume is missing. Yes. There's some problem, I guess, technical. Still, the volume is not there, Ashwini, sir. Now it's fine. Thank you, Ashwini, sir. Now, I would like to take a moment to introduce Mr. Bharat Baldua. Mr. Bharat is an MBA professional with more than 9 years of experience encompassing human resource management, recruitment, compensation and benefit, employee relationship, management and conflict management. Currently, Mr. Bharat is working as talent acquisition partner for HDFC Bank and managing recruitment for entire Madhya Pradesh for retail banking and retail asset business. Now, I would request Mr. Bharat to kindly share your insight on pros and cons, challenges and opportunities in banking sector, and then we'll follow question and answer round. So hand it over to you, Mr. Bharat, all yours. Yeah. Hi, very good afternoon. I think Shikha, everyone is on mute, correct? Yes. So I am only the one. Yes, if someone will have any kind of question or query, then only they'll unmute and ask the question. Okay. So I would request if you can unmute 4 or 5 candidates so that I can get a response. Otherwise, it will like a one-way conversation. Okay, you want it to be more interactive. Sure, we can do it. We can give access to the students. Students, you can raise your hand when you want to speak and we'll unmute you then and there. I want this session to be more interactive rather yeah, than this is better approach, I guess. Yeah, correct. Sure, we'll do it.
So hi, a very good afternoon to all. I think today, see, my तो is off. I am in off. Today is second Saturday. I hope आप लोगों का तो already 3-4 महीने से off चल ही रहा है. So these people are first year students, correct? Third year, third sem student, MBA third sem. Third semester. Okay, मतलब they are going to complete their MBA Yes. next year. Okay. And they are going to ready for the placements. We are very soon we are going to start with the final placement activities. So the motive for this workshop is to get them ready for the final placements. Okay. So, you know, we want some inputs from your side, like how the banking sector is going, what kind of pros and cons are there, what kind of challenges, opportunities there could be for the students. Okay, so I can see there are close to 242 participants. So what is Yes, the batch size? it is 300. 300. Yeah, Includes all streams, correct? yeah, For MBA third semester. for MBA third. Okay, and this year, like we have selection of close to 5-7 candidates from our college only. Yes, yes, that Okay. from 1920 batch. But I think numbers are come, like total numbers, those who have attended, numbers are come for this year, correct? Yeah, they are joining in between. There are some, you know, internet problems, so they keep on joining in between the session as well. Okay, okay. No, I am asking like these year selections, how many selections we have from Prestige, Gwalior? 6 selections were there in all. 6 selections. For HDFC, yeah. Great. And they all are joining, correct? I think 1 or 2 got back One out. or two, yeah, back out. Otherwise, You everybody currently is are. joining. Due to that lockdown or this COVID terror in front, the students, that's why this happened. Let's start with this COVID only. So, like, I wanted to understand, like, we have 250 candidates in this COVID. I think this will remain for next 1.5 year as per understanding from media and all. So if like everyone has started backing out, so what will happen after 1.5 year? Because everyone wants bread and butter, correct? So COVID is something like we need to live with it. So there is no option. Like I am going office and I have 130,000 staff, which is working for HDFC Bank, and my every branch is open until and unless local admin is forcing us to close. So they are working hard. They are meeting people. They are completing their demand. You know, we are doing everything whatever banker, whatever customer wants. So as a banking, we are doing everything. So you people are say fresher. And what happens जब मैंने 2010 में MBA पास आउट किया ना तो everyone tell कि recession है तो जॉब ही नहीं मिलता है. और हर साल यही होता है कि जो भी बैच पास आउट होता है उसको यही लगता है कि रिसेशन है तो आई नॉट गेट अ गुड जॉब. करेक्ट. तो रिसेशन तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिसेशन. लास्ट 10 सालों में इस साल आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको कुछ खाने को नहीं मिला या आपने कुछ ट्रैवल नहीं किया या आपने कुछ अपनी ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं की है. So there is nothing called recession, and it is all market, and market is always open. And that is why we are opening new branches. Other competitors are coming into banking. So banking is one field which will go long. जब तक वी आर ब्रीदिंग बैंकिंग इज देयर, करेक्ट. तो बैंकिंग एक ऐसा ही इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा ही चलता रहना है. बट डेफिनेटली इट इज नॉट ओवरनाइट जर्नी की टुडे यू विल जॉइन एंड नेक्स्ट डे यू विल गेट अ गुड प्रोफाइल और अ गुड रोल और अ गुड कॉम्पनसेशन. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. So I wanted to understand from 3-4 candidates or 3-4 students, what are their routines during lockdown, because college to chali raha hai and then see studies are continuous. So if you can unmute 3-4 students who wanted to tell what are their routine and what are their understanding to this COVID situation, how they are going to face this situation if this will prevail for the next 1 or 2 years. What will you do? Any student wanted to tell their knowledge, share? So it does not affect that much the corporation because of the organization allow us to work from home, sir. This will help a lot for the organization to run up and continuously working for so long. So you people are doing summer interns, correct? From work from home? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So Now it's over. It's over. Yes, sir. So which all organizations providing you summer interns from work from home? If you can name few of them, one So or two. almost all. Actually, I'm working for NSA, Okay. Educational Institute, Coaching Institute. I will provide work from home means internship. So I'll work for that. Okay. Sir, I also worked with Candida. It's a startup mobile application app. मुझे कॉल करो एक Zoom मीटिंग में. हाँ जी. Okay.
So, see, what I understand, जो हमारे ब्रांच में या जो बेसिक मैंने भी इंटर्नशिप की है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हम लेते नहीं है इंटर्नशिप को. So, अभी वर्क फ्रॉम होम में आपने कितनी सीरियसली इंटर्नशिप ली? So It is little it bit depends. more serious because everyone is thinking that online is not as much giving us perfections, but in which organization I am doing an internship. So I did my internship US International, so they are very punctual to their task. They are regularly giving us a presentations, research work, analyze a situation. So everything, I think it is being more productive than comparative offline. Okay. Because it is US International. What about local Indian firms? Sir, I have done an internship from the Candida. It's a new startup mobile application app. Okay. The work is provided by them is I have to only install, make the promotion of the app. Means I have to install different apps, apps in different phones. Okay. This much I have to do. To Okay. share the link this much. See, overall, if I can understand that everyone has done summer internship, work from home because situation does not allow you to go out. So everyone has done. So definitely, someone given 200% and someone given 100%, someone given 50%. But I just wanted to update you and tell you because the summer internship is one thing which is more important because what will happen once you are into the market, once you are into the position to sell you to any organization during interview, during campus campus interviews. So HR के पास basic objective क्या होता है आपके पास because you're fresher, you did BCom or BBA and then you join MBA for some purpose and then you think कि college है अभी तो college का जो कैंपस है वो तो बहुत अच्छा HDFC आता है ICICI आता है नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग तो दिस इज कॉलेज ड्यूटी की वो तो मेरा जॉब लगवा देगा करेक्ट बट ऐसा होता नहीं है ना बिकॉज कॉलेज क्या कर सकता है कॉलेज कैन आस्क अस टू विजिट यू एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन टू द टेबल अभी कॉलेज का शिखा या अश्विनी या अभय तो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं ना तो यू आर द पीपल यू आर द फेस टू HR तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आपके साथ है सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस बिकॉज व्हाट हैपन अभी जो आप लाइफ जी रहे हो और जो भी आप नेक्स्ट 6-8 मंथ्स जीने वाले हो व्हाट इज योर कॉलेज लाइफ दिस इज द बेस्ट लाइफ एंड दिस इज द पैम्पर्ड लाइफ उसके बाद लाइफ इज माने यू हैव टू कम इनटू द जंगल ठीक है तो जंगल राज चलता है तो प्लीज बी वेरी श्योर बिकॉज मैंने भी MBA किया 10 साल पहले MBA किया तो डेफिनेटली उस टाइम का थॉट प्रोसेस और इस टाइम के थॉट प्रोसेस में चेंज है और वो आपके में भी चेंज आएगा बट हमेशा खुद गड्ढे में गिर के क्यों सीखना दूसरे जो गिर चुके हैं उनसे भी तो हम सीख सकते हैं करेक्ट होता क्या है हमें लगता है कि अरे सामने वाला तो ज्ञान दे रहा है मेरे पास तो इतना ज्ञान है कि मैं इतना दिन भर दे सकता हूँ बट ज्ञान देने से फायदा नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू पीपल आर देयर सी अभी किसी का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का होगा किसी का फैमिली बैकग्राउंड सैलरीड होगा किसी का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा रिच होगा थोड़ा सा मीडियम होगा पुअर होगा किसी को जॉब की जरूरत है किसी को नहीं है कभी तो करनी है इवन इफ यू वांटेड टू हैंडल योर फैमिली बिजनेस यू नीड टू पुट इन योर माइंड करेक्ट अदरवाइज तो बना बनाया बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाता है सो बी वेरी श्योर वट एवर यू आर डूइंग जो भी आपकी समर इंटर्नशिप है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप फेस करोगे इंटरव्यूज तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है आपकी CV देख के आई कैन नॉट आस्क यू ना कि मेरे को फिलिप कोटलर का मार्केटिंग का डेफिनेशन बता आई विल आस्क कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट वाज योर लर्निंग व्हाट वाज योर फेलियर्स आपने उसको कैसे सही किया आपको क्या लगता है कि व्हाट यू कैन इम्प्रूव और आपने दूसरों से क्या सीखा बिकॉज अभी आप रॉ हो एंड why we used to hire trainees or freshers what is the reason because I have n number of lateral hires available तो can anyone tell कि what is the reason कि मैं trainees fresher hire करता हूँ बैंकिंग के लिए जहाँ पे मैं एक आपको कैश मैनेज करने के देता हूँ जहाँ पे आप मेरे कैशियर होते हो और सीधे 1 करोड़ 2 करोड़ के ट्रांजेक्शंस पूरे दिन में मैनेज करते हो इतना रिस्की है स्टिल एवरीवन वांट्स कि ट्रेनीज और फ्रेशर्स आए व्हाट वाज द रीजन मैंने एनी रफ नॉलेज कि हम ट्रेनीज क्यों हायर करते हैं नहीं तो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा So actually, think- banks and other organizations hire the freshers or trainees just because they are raw and they are more dedicated towards their work and they are more adaptive to work. So they want to learn some new things also. That's why trainees and freshers are hired in the organization. dedication see your 2 seniors got backed out before even joining So they are more responsible. There are Point of time. exceptions everywhere. correct so you have to understand कि see
I think out of 30-40, 6 got selected, correct, Shika? Out of 30-40 students, 6 got selected. है ना? And this is situation no one knows because we did I think in January 2020 we did campus at Prestige, and this situation comes into March and then वो बढ़ती गई तो इतना challenge है. But see, you have to understand कि future कैसा है, अभी उनको लिए कितना प्रॉब्लम है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 1.5 ईयर, सी ग्वालियर में तो कभी जॉब नहीं मिलेगी. तो जब मैं इंटरव्यू में आता हूँ या शायद आपने कभी जो दूसरे इंटरव्यूज अटेंड किए होंगे, तो मैं आई एम वेरी मच क्लियर दैट आई वांट पीपल फॉर एंटायर मध्य प्रदेश. यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विद लोकेशन. इफ देयर इज एनी इशू विद लोकेशन, वी आर सॉरी कि मैं आपको ले पाऊंगा. द प्रॉब्लम इज मेरे पास 175 ब्रांचेस है मध्य प्रदेश में, विच इंक्लूड्स रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन and metro locations, and everyone wants metro location, everyone wants night life, everyone wants life कि मेरा मॉल हो, मैं शाम को पिक्चर जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ घूमूं. बट जब आप इनिशियली अपना करियर स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू बी वेरी ओपन. इफ यू आर नॉट ओपन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट योर करियर, बिकॉज वो चैलेंज है. स्टार्टअप में भी आप जा सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ऑफरिंग वेरी गुड, वेरी लुक्रेटिव सैलरी. बट व्हाट डू यू थिंक कि जो सैलरी ऑफर होता है वो इतना आसानी से आपको मिलता है? सेल्स प्रोफाइल है, एवरीवेयर इज सेल्स प्रोफाइल. So how many people are there from finance background or marketing background or mix of background? कितने का बैच है आपका? शिखा, I think you're mute. So marketing is compulsory for all. कितने? Marketing is compulsory for all. Okay, and finances? मैं कितना So ना we have finance to choose किया? from between finance and HR, and the marketing is common between us. So Okay, IB so also, marketing is sir. common and one is to choose either finance or HR. yes, sir. Okay, तो अभी मैंने अगर मुझे रेशियो पता करना out of 300 का बैच, like how many people are from finance or how many from HR? So we have not opted till now. अच्छा, तो अभी क्या ऑप्शन लेने वाला है? मतलब अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज योर थॉट? व्हाई मार्केटिंग? और फाइनेंस लेते हो तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू विल बी लैंडेड टू? फाइनेंस से क्या समझ में होता है? Like data entry, something recording the all transactions, daily Data transactions. entry is ruined. Data Sorry, entry is sorry. ruined. Recording all data transactions and something like that, sir. No, it is not like that. You have to understand. Managing the cash flow. Dealing with financial product. Okay, dealing with financial product means Sir, auditing, wealth management. ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं आज की डेट में. Wealth management is the industry where the most jobs are available. Okay. Yeah. Okay. Activity of managing money. Portfolio management. चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट की इसी कोविड से पहले व्हाट इज बैंकिंग और कोविड के बाद व्हाट इज बैंकिंग. कोविड के पहले वी आर मोर इनटू फिजिकल टच बिकॉज एवरी कस्टमर वांट्स कि मैं बैंक आऊं, मैं बैंक से ही सारे ट्रांजैक्शंस करूं. रीजन बीइंग वेयर they are going to deposit their money, they wanted to understand कि कौन है, कहाँ है, और physical touch होना चाहिए because मेरा पैसा it is a hard earned money, correct? But overnight मार्च के बाद ऐसा change हो गया कि it is now more moving into digital banking. Digital banking is something जहाँ पे you are more connected to customer either through Zoom or either through call. So do you think you over the call or over the Zoom without meeting people, asking for the money, asking for the investments is easy? It is not that easy, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी से पैसा निकलवाना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू प्लीज कम टू HDFC बैंक और आप मुझसे मिलो, मेरे साथ चाय पियो एंड देन अंडरस्टैंड, आपके लिए इजी है बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि भरत बैठा हुआ है, भरत क्या समझा रहा है, भरत का बैकग्राउंड क्या है, भरत एक जगह बैठा हुआ है. बट भरत ओवर द कॉल कर रहा है, तो आज की डेट में फ्रॉड्स भी कितने हैं, ठीक है? बट द डे यू विल ज्वाइन बैंक, आपके ऊपर यही प्रेशर आने वाला है. योर ब्रांच मैनेजर विल आस्क कि आपको तो ओवर द कॉल ही कॉलिंग करनी है, ओवर द कॉल ही लीड्स क्लोज करनी है. सो हाउ डिफिकल्ट इट इज, आपको यही चीज फेस करनी है बिकॉज अभी जो नया सिनेरियो है, जब आप जॉब में जाओगे तो इट इज वेरी डिफरेंट. इट इज नॉट लाइक ओल्ड डेज कि आप रोज ऑफिस जाओगे, लोगों से मिलोगे, कस्टमर विल कम टू योर ब्रांच एंड डायरेक्टली टच यू. इट इज नॉट लाइक दैट. You have to reach customer digitally without meeting him, and then you have to complete your targets. And definitely either you join bank, either you join FMCG sector, either you join any other sector. Every sector is target. So please be open कि आपको sales में ही आना है. If you are looking for a job kind, data entry kind of job, तो I must tell you, like we used to hire chartered accountants also,
एंड जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इवन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेल्स, है ना. देयर पोर्टफोलियो इज डिफरेंट. अगर आप 1 करोड़ का लोन देते हो तो दे यूज्ड टू गिव 10 करोड़ से 100 करोड़ का 200 करोड़ का लोन, बट उनको भी सेल्स के लिए फील्ड पे जाना है, कस्टमर को समझना है, एंड देन कस्टमर इज हैविंग एन नंबर ऑफ ऑप्शन. इट इज नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, है ना. वी हैव एन नंबर ऑफ बैंक्स, आप गिन भी नहीं सकते शायद, आप बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बैंक्स हैं, एंड एवरीवन इज ऑफरिंग सेम प्रोडक्ट्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. तो यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि अब आपका जो जॉब है वो टफ होने वाला है. तो अभी जो करंट लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जी लो, लेकिन प्लीज बी प्रिपेयर फॉर कमिंग इनटू जंगल, है ना. यहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता है. एवरीथिंग इज चैलेंजिंग, आपको फेस करना ही है. और अगर आपको आगे बढ़ना है तो जस्ट आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी. आपको क्या लगता है कि मैं एचडीएफसी बैंक का एंटायर मध्य प्रदेश मैनेज कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से पढ़ाई किया कर रहा हूँ? आई एम अहमदाबाद से. ऐसा नहीं है. आई एम फ्रॉम रीवा, ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश. आई डिड स्कूलिंग फ्रॉम रीवा ओनली, देन आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम एपीएसयू रीवा of Desh Pratap Singh Vishwavidyalaya. Then I did MBA from Bhopal University, Barkatullah University. Everyone knows, correct? Yes, sir. So I am telling you, मेरे पास एक बार किसी बैंक का कॉल आया कंसल्टेंट से, तो they wanted some see they are hiring me for literal, मतलब I am already carrying 4-5 years of experience and they want someone to join into HR function. But once they got my profile and they know that they got to know that I did my MBA from Barkatullah University, so they rejected me because they don't want people from Barkatullah University. They want people from only tier 1 or tier 2 institute or college. So I say okay. So ऐसा भी है, ये भी challenges है. तो you have to be very understanding कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो मेरा लाइफ और मेरा करियर खत्म हो गया, ठीक है. There are n number of people. See, Shikha, you know Mr. Neeraj L. Sharma, correct? Neeraj Sharma, who is cluster head for HDFC Bank, we met. Yes, I do know. You know from where he is? He is from Tikamgarh. Schooling, graduation, MBA, everything is from Jivaji University, and he is a vice president. Yes. Yes, he is doing so good in career. He is a vice president, managing entire Gwalior cluster with a portfolio size of 1500 crores. है ना. उनके पास 17 ब्रांचेस हैं with a portfolio size of 1500 crore and manpower of close to 115. ठीक है. So you please. Actually, it is your skill that matters the most. That how you manage your thing. It's not you need a brand every time with you. Initially, what I told you that college is only spectator. It will help you to visit us or meet us. But at the end of the day, you are the person who have to crack. तो अभी crack कैसे करना है? I am telling you. सबसे पहला तो grooming part, which is more important once you're coming into service industry. See, if you're going into IT industry, they are least bothered on grooming part because उनका maximum काम work from home होता है. It is not direct contact. You do not need to contact the customer directly or meeting the customer directly. It is all over the call. So IT industry is very different. But when you are into service industry, where you are going to meet the customer personally, one-on-one, so you have to be very groomed, correct? रीजन भी आप मेरे को बताओ कि अगर आप ऐसे भूत जैसे बने हो एंड समवन कम्स टू यू एंड वांट्स कि बॉस प्लीज कम टू मी एंड आप मेरे साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करो, आप एक अकाउंट ओपन करो एंड गिव 50,000 का चेक और 1 लाख का चेक एंड देन डू सम इन्वेस्टमेंट. आप मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे. अगर मैं फटी जीन्स पहनकर आ गया, है ना, जो आज का फैशन है, और टी शर्ट पहनकर आ गया और नीचे मेरी स्लीपर्स है और भले मैंने एचडीएफसी का कार्ड टांगा हुआ है, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो एचडीएफसी कैसे बंदों को हायर कर रहा है. तो ग्रूमिंग इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो कोई नहीं सिखा सकता यार. आप लोगों की तो क्लासेस भी होती हैं. स्टिल वी फेस चैलेंजेस. पीपल यूज्ड टू कम इनटू इंटरव्यूज विदाउट शेव, है ना, बोलते हैं आजकल का फैशन है. बट वी आर नॉट क्रिकेटर्स, करेक्ट? क्रिकेटर्स को तो हर चीज का पैसा मिलता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ पर्सनल ग्रूमिंग इज मिसिंग तो आप स्ट्रेट अवे रिक्रूटर के माइंड पे रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है. और शायद आपके कॉलेज वाले आपको सुबह शाम यही ज्ञान देते रहते हैं, बट आपको उस टाइम समझ में नहीं आता क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है दैट इज देयर जॉब, उनका काम है बोलना, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो आपको करना है. और दे कैन नॉट मेक यू फोर्सली इम्प्लीमेंट ना. अभी कोई आपकी शेविंग तो नहीं कर सकता कॉलेज में बिठा के, ठीक है. तो ग्रूमिंग इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो इवन यू आर नॉट अवेयर कि अगर आप किसी भी बैंक के लिए बैठ रहे हो, वेदर इट इज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आप उसका बैकग्राउंड ही नहीं पढ़ते हो. कॉलेज वालों ने अगर पीपीटी ले लिया तो परफेक्टली फाइन, अदरवाइज तो आप बिल्कुल रॉ होकर आ जाते हो. आपको कब पता चला? जब हम पूछते हैं तो सर हमको तो कल ही शिखा मैडम ने बताया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, ठीक है.
So these kind of answers we used to get. तो आप मेरे को बताओ कि अगर आप initially during interview इतने casual रहोगे, so how should I take a call to take you? And I need to understand कि how you're going to manage a cash where crores or 2 crores are flowing day in day out in 6 hours time. है ना? तो अंडरस्टैंडिंग आप कहाँ जा रहे हो उस चीज की प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर मैं पूछता हूँ एचडीएफसी का एमडी कौन है, फिर इफ नो वन नोज, सामने वाला अगर ब्लैंक हो गया, अगर उसने तुरंत नाम नहीं लिया, तो फिर मेरे लिए तो ये अंडरस्टैंडिंग है, इफ ही डज नॉट नो हु इज द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक, व्हाट इज करंट सेविंग इंटरेस्ट रेट, सो आप मेरे प्रोडक्ट्स कैसे समझोगे? बिकॉज इन एनी बैंक यू ज्वाइनिंग यू हैव टू सेल क्लोज टू 30-40 प्रोडक्ट्स, और कस्टमर को गलत बोल के बेचा तो कस्टमर खराब, और जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है, चलो ये तो छोड़ो. आपने अगर आपने मार्केटिंग इज योर से मार्केटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल, अगर अभी मैं पूछता हूँ कि इज फादर ऑफ मार्केटिंग, तो 90% गॉट मीटिंग. फादर कौन है मार्केटिंग, ये तो पता ही नहीं है मेरे को. सो दीज आर द चैलेंजेस आई थिंक विच लाइक इवन फैकल्टीज आर फेसिंग. कैसे समझाया जाए, बिकॉज ये समझाया नहीं जा सकता, ये आपको समझना पड़ेगा. आप खुद देखो कि सी आफ्टर एमबीए यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद बस एक ही ऑप्शन बचता है. 3-4 साल का गैप लोगे. क्या कर रहे थे सर? बैंकिंग की कोचिंग कर रहे थे. व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग कोचिंग व्हेन यू डिड एमबीए? व्हाई यू जॉइन बैंकिंग कोचिंग? फिर बैंकिंग कोचिंग 4 साल करने के बाद इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी प्राइवेट इंटरव्यू, प्राइवेट बैंक इंटरव्यू, व्हाट इज द पर्पस? बैंकिंग कोचिंग तो लोग करते हैं कि एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाए. उसके बाद आप बोलते हो सर 4 साल किया, 3 साल तो मार्क्स ही नहीं आए. फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? अरे सर आपको पता ही है ना कि जनरल कैटेगरी की तो बहुत हालत खराब है, वो तो सब उन्हीं को मिल जाता है. तो ये एक्सक्यूजेस रहते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर करियर बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाता है. सो कॉलेज कैंपस में अगर हो गया तो गुड है, अच्छी बात है. नहीं हुआ तो लाइफ इज वेरी स्ट्रगलिंग, और करंट सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है. तो प्लीज रिस्पेक्ट योर कॉलेज, प्लीज रिस्पेक्ट योर स्टडीज. अगर वो नहीं हो रही है, वो मिसिंग है, और एक बार चांस मिस हो गया, तो फिर life is very challenging. I'm telling you the truth. I tell you the current scenario where I used to offer, even on lateral hirings, when we used to do lateral hiring, we used to offer close to 3,500 offers per month for HDFC Bank, entire India. Currently, from last 3 months, we are doing close to 500-700 offers, correct? तो आप देखो कितना डिप हुआ है. 3,000 ऑफर में डिप करो, मतलब 3,000 लोगों का अपॉर्चुनिटी कम है. सो आप समझ लो कि जंगल में बहुत मार है, तो यू हैव टू बी बेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एंड थर्ड पार्ट इज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी. इफ एवरीवन वांट्स कि मेरे को लोकेशन घर मिल जाए, मेरी फैमिली के पास ही रहने को मिले, तो प्लीज आप ये समझो कि अभी जिस एज में आप हो और जिस एज में आपके पेरेंट्स हैं, योर पेरेंट्स वांट्स यू आफ्टर 5-7 ईयर्स, करेक्ट? अभी तो आपके पेरेंट्स इतने हेल्दी हैं कि आप बाहर भी रहोगे और अपना करियर मैनेज करोगे, तो दे कैन मैनेज themselves. But after 5-7 or down the line 10 years time, they want you at hometown. तब आप अपने घर आ सकते हो. बट अगर इनिशियली चैलेंजेस है कि नहीं सर मैं तो ग्वालियर से अशोक नगर नहीं जाऊंगा, या तो मैं बालाघाट नहीं जाऊंगा, या मैं पुणे नहीं जाऊंगा, या मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा. सो डू यू थिंक कि 300 लोगों का बैच है, तो विल एवरीवन गेट, मतलब all 300 will get a ग्वालियर और a hometown position? Is it possible for you guys, or is it possible for your college कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. उसमें क्या होगा? If you're not flexible, you are out of the race. अभी आप रेस से बाहर हो गए, then what will you do? वही जैसा किसी ने मेरे को बोला डेटा एंट्री का जॉब, and then some chartered accountant will hire you, and then he will ask you to do data entry job, and then you will get 12,000 रुपए, 10,000 रुपए का जॉब. I have people, those who did data entry job at 10,000-12,000 rupees, and they are happy. They're happy because they want their hometown. But you understand that after 5 years, is 10 or 12,000 bucks is fine. You can manage your survival. It is not possible. Everyone wants growth, but they don't want to take challenges. So please be open for locations. Correct. इस पे किसी का कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं सर मुझे तो नहीं जाना है, मैं घर पे अच्छा कर लूंगा? Anyone want to contradict? या किसी को चैलेंज है? देखो मैं वही सारी चीजें बोल रहा हूँ जो आपका टीपीओ, जो आपके बेसिक एटिकेट्स की क्लास होती होगी, जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की क्लास होती होगी, आपको यही सब समझाया जाता होगा. बट ये मैं बोल रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़े, बिकॉज आई एम द वन हु विल कम टू यू एंड डेफिनेटली यू विल फेस मी, और उस टाइम मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि बेटा उस टाइम समझाया था. सी आई हैव पीपल नॉट फ्रॉम योर कॉलेज, बट देयर आर स्टूडेंट्स वो बोलते हैं सर मेरे को तो टीपीओ ने ना जबरदस्ती भेज दिया, मेरे पास मनी नहीं था. सी आप ये देखो कि आपका टीपीओ कितना
चैलेंज है आपके लिए. Even I suggested one of the college in Indore that if any student don't want campus interviews, don't want to send to campus interviews, take a consent and just exclude him or exclude her, so that आपका काम भी हल्का हो जाए. Because there are students, they have good family business, they wanted to settle into family business. Because होता है क्या है कि because आप, और कई बार ऐसा होता है कि वो काफी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं और उनका सिलेक्शन होता जाता है एंड दे यूज टू बैक आउट, और जो थोड़े से डल स्टूडेंट्स होते हैं वो आ ही नहीं पाते. और सी यहाँ पे डल और ब्राइट का कोई बात ही नहीं. इट इज ऑल योर अंडरस्टैंडिंग. आप क्या पढ़ते हो, वही सेम फैकल्टी इज मेकिंग यू अंडरस्टैंडिंग कि बेटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. वो चाहे मुझे पढ़ा रहा है चाहे आपको पढ़ा रहा है, बट इट इज ऑल बिकॉज अभी क्या होता है, शाम को चाय पी, फैकल्टीज को गाली दी, अरे दिन भर का इनका यही काम है, यही करते रहते हैं, कैंपस तो करवाते नहीं है, लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे यूज टू टेक लॉट ऑफ पेन, है ना, टू कॉल कंपनीज टू यू. आपके कॉलेज डोर स्टेप पे आके आपको उठा के लेके जाता है. बट दोज वर नॉट सीरियस, सो प्लीज एक्सक्लूड योरसेल्फ सो दैट जो सीरियस है उनका लाइफ अच्छा हो जाए. ठीक है. करंट सिनेरियो और आगे आने वाले नेक्स्ट 1 और 2 years और 3 years आर वेरी डिफिकल्ट. हम और आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार मेरे टाइम पे ऐसा क्यों हो गया. तो जब मैं 2010 में था तब भी ऐसा हुआ. तो आई टेल यू, आई एम नॉट फ्रॉम HR बैकग्राउंड. तो आई डिड माई MBA फ्रॉम से मार्केटिंग और फाइनेंस. मेरे दिमाग में भी था कि फाइनेंस करेंगे तो सेल्स नहीं करना पड़ता, मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा, आई वांट सम ऑफिस काइंड ऑफ जॉब. बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय MBA, देन उसके बाद जब कोई जॉब नहीं मिला मेरे को, ऐसा ऐसा जॉब मिला, मतलब शायद उस टाइम मेरे दिमाग में भी था कि नहीं बैंगलोर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. देन आई गॉट अ जॉब एट छाबर एंटरप्राइजेस एट इंदौर, भोपाल ओनली. वहाँ पे मेरे को 6,000 रुपीज का सैलरी मिलता था. तो मैंने वो 5 महीने किया. देन आई गॉट अ जॉब इन एंजल ब्रोकिंग. वहाँ पे मेरे को 8,000 मिला. तो आई थॉट करीब 8,000 रुपये मिल गया, सीधे 6 से 8,000 मिल गया. तो इफ यू सी कि 6 से 8,000 का ग्रोथ, बिकॉज होता क्या कि 10,000 पे जब 30% का ग्रोथ होता है तो 3,000 रुपये बढ़ता है ना. 10 लाख पे 30% का ग्रोथ होता है तो 13 लाख रुपये हो जाता है, 3 लाख रुपये बढ़ जाता है. करेक्ट. तो 6 से 8,000 हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह. फिर मेरे को एक्सिस बैंक में ऑफर मिला. तो आई विल टेल यू माई स्टोरी व्हाट हैपेंड. आई basically studied at Bhopal and then I got a job in angel broking and I did angel broking में job, sales का job, जहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता था. उसके बाद मेरे को एक दिन ऐसे ही मैं नौकरी पे अप्लाई करता रहता, तो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम एक्सिस बैंक कि आपका एक्सिस बैंक में रिटन एग्जामिनेशन है विच इज एट लखनऊ. तो मैंने सोचा शायद फेक होगा बिकॉज ऐसा आया. बट मैंने सोचा जो चल के देखते हैं एंजल ब्रोकिंग में. मैं एक्सिस बैंक में लखनऊ में एग्जाम दिया. एग्जाम देने के बाद देन आई again back to angel broking and then I got 15-17 days में कि I need to appear for an interview. I cleared the exam. फिर मैं इंटरव्यू देने गया. फिर 15 days तक कुछ नहीं हुआ. then I got confirmation कि अभी मेरा confirmation हो गया, मेरे को जॉब ऑफर आ गया. और वो जॉब ऑफर आया 19,000 रुपीज का, असिस्टेंट मैनेजर. तो आई वॉज लाइक कि मैं हेवन में चला गया कि सीधे 8,000 रुपये से 19,000 रुपये हो गए. इट्स डबल, सैलरी डबल हो गई. तो अभी मेरे को जाना ही है. तो आई लेफ्ट एंजल ब्रोकिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई नोटिस पीरियड. लखनऊ में ज्वाइनिंग के लिए गया 1 नवंबर 2011 को एंड फुल डे में ज्वाइनिंग के लिए बैठा हुआ वहाँ पे. मेरे साथ ऐसे 10-15 लोग बैठे हुए थे. देन जब HR आया तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई. तो श्रद्धा जैन मैडम मेरी HR हुआ करती थी. तो उन्होंने जब हम लोगों को शाम को 6 बजे लोकेशंस बांटनी चालू की थी. मैंने आई एम फ्रॉम रीवा, मैंने सब कुछ रीवा से किया. 2 साल में भोपाल में रहा. दिमाग में यही था कि भोपाल या रीवा में जॉब करूंगा. उन्होंने मेरे को लोकेशन दी लखीमपुर खेरी. अभी लखीमपुर खेरी इवन आई हैव नॉट हर्ड कि साला ये है कहाँ पे. तो आई कॉल्ड माई मम्मी कि मॉम आई गॉट अ मैंने पोस्टिंग है लखीमपुर खेरी. और माई मदर इज लाइक वेरी सेंटिमेंट. लखीमपुर खेरी सुना ही नहीं और यूपी वैसे ही डर जाता है आदमी. नहीं जाना, छोड़कर आ जा. मतलब छोड़ के कैसे आ जाऊँ. मैं तो जो करंट जॉब कर रहा था वो भी छोड़ दी है और अभी जो जॉब ऑफर रखी 19,000 रुपये की वो भी छोड़ दूँ. तो फिर मैं HR के पास गया कि मैडम लखीमपुर खेरी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, माई मदर इज नॉट रेडी. उस टाइम मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं. बोला ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ. तो शी टोल्ड ठीक है कोई बात नहीं भरत, देन यू कैन टेक द ट्रेन एंड गो बैक होम. मेरा तो दिमाग में वही हो गया कि हाउ कैन, मतलब अभी तो जॉब भी नहीं है और जॉब अच्छी खासी जो लगी थी छोड़ भी थी और अभी लोग ज्वाइनिंग ऐसी हो गई मेरी. तो फिर आई कॉल्ड माय पेरेंट्स बैक कि यहाँ तो जॉब पे आ गई. दे वांट कि ठीक है आप घर चले जाओ, इधर यू ज्वाइन लखीमपुर खेरी और घर चले जाओ. तो मैंने बोला यार तो घर तो नहीं जाऊंगा बिकॉज MBA कर चुका था. इफ आई केम बैक टू होम तो मम्मी पापा को तो प्रॉब्लम नहीं है बट आजू बाजू वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि अरे लड़के ने MBA कर लिया, क्या कर रहा है, घर पे आके बैठ गया, जॉब नहीं मिला. और ये सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो सकती है ना. अगर वो प्रेशर है तो उस प्रेशर के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग आज की डेट में ना इतनी पैम्परिंग है कि मैं मम्मी पापा को बोलूंगा ना कि मुझे काम नहीं करना है, आप बोलोगे तो योर पेरेंट्स विल टेल डोंट वरी बेटा जॉब छोड़ दे, दाल रोटी तो मैं खिला लूंगा.
लेकिन अगर ऐसी पैम्परिंग वाली लाइफ है तो फिर तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट? बिकॉज इतने पैम्पर्ड हो तो हाउ विल यू सस्टेन, हाउ विल यू सर्वाइव? बहुत टफ लाइफ है. तो सी आई जॉइन लखीमपुर खेड़ी एंड लाइक इन 30 days टाइम आई गॉट प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ आपने सुना होगा, इलाहाबाद से आगे है. तो मैं प्रतापगढ़ में 8 महीने रहा. तो मेरा जॉब क्या था, सी फर्स्ट 8th of November को जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं ब्रांच हेड कॉल ऑन 15th of November. यस भरत, सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? मतलब सर कुछ नहीं, जस्ट आई गॉट माय आईडीज एंड एवरीथिंग एंड स्टार्टेड लर्निंग, कैश समझ रहा हूँ. बोले नहीं ये सब तो ठीक है, व्हाट अबाउट सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, कितने नंबर दे रहे हो आप? तो मैंने आई एम शॉक्ड, अभी तो किसी से मिला ही नहीं, आई एम नॉट, मेरा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ कैसे करना है. तो व्हाट ही टोल्ड मी, सी भरत, यू आर कॉस्ट टू माय ब्रांच, मतलब योर सैलरी इज कॉस्ट टू माय ब्रांच, सो यू नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ. सो आई वांट 2 सेविंग्स अकाउंट बाय द एंड ऑफ द डे. अभी आप कुछ भी करो. तो मैं तो मतलब सोचा कि यार ये तो जॉब है क्या, मजाक है, तो हिटलरगिरी चल रही है. सो फिर मैंने एक डायरी ली एंड देन मैं प्रतापगढ़ में बाहर निकल गया. तो मैं प्रतापगढ़ में ब्रांच खुले 10 महीने हो चुके थे एक्सिस बैंक की. मैं जहाँ पे भी जाऊँ, सर मेरा तो ऋषि सर ने अकाउंट खोल दिया है, मेरा तो देवेश सर ने अकाउंट खोल दिया. मतलब किसका खोलूं, सबके तो खुल चुके हैं अकाउंट. एंड माय ब्रांच हेड वांट्स कि आज तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हो गई नहीं. तो डे 1 आई केम विद 0. फिर वही हडल मीटिंग होती है, शाम की मीटिंग होती है, उसमें आपको सुनने को मिलता है सी योर कलीग इज डूइंग दिस एंड दैट, आप क्या कर रहे हो. 2-3 दिन देन आई स्टार्टेड रोमिंग इन प्रतापगढ़. पैदल में निकल जाता था हर जगह. शर्म आती थी किसी की दुकान में घुस जाना, फिर वो मुझे देख के दुकान बंद करने लगता था कि यार ये तो फिर सेल्स मांगेगा, धंधा मांगेगा. ये हालत हो गई. तो आफ्टर 45-50 days 2 महीने निकल गए, 0-0-0, रोज सुन रहा हूँ. तो दिसंबर में ऐसा हुआ कि मेरे को मेरे ब्रांच हेड ने बोला कि आज तो आपको इंश्योरेंस करना है, अदरवाइज आज ब्रांच का ईओडी नहीं होगा. ईओडी इज एंड ऑफ द डे, जब हम ब्रांच बंद करते हैं. तो आज भरत हैज टू डू 1 सेल्स, क्योंकि उसका कस्टमर रोज आता है लेकिन शाम तक आते आते वो घर ऑफिस तक नहीं पहुंच पाता. आज को भरत तो कस्टमर को लाना ही पड़ेगा. सो अभी मैंने उस दिन सोच लिया था कि आज तो बेटा रिजाइन ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेजिग्नेशन इज द ओनली ऑप्शन. आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड की भाई आज तो मतलब नौकरी चली गई, कुछ नहीं हो पा रहा. तो उसने बोला कि नहीं ये सब चलता रहता है सेल्स में. वो थोड़ा मुझसे सीनियर था कि यू हैव टू फेस दिस इज एक्चुअल लाइफ. अगर तू इसको फेस नहीं कर पाए, इनिशियल 6 months आर वेरी टफ. तो फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैं बॉस के पास गया. बॉस की डेफिनेटली कल हो जाएगा. आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा रेफरेंस सेल था, मैंने 16,000 का पहला सेल्स किया. देन आई गॉट अप्रिसिएशन, 16 सेल्स. फिर उसके बाद जनवरी फेब, फिर ऑटोमेटिक बिजनेस आने लगा. मैं ओपन अप होने लगा कि हाँ ठीक है मैं कस्टमर से बात कर सकता हूँ, आई कैन गो एंड मीट, आई कैन गो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड. धीरे धीरे मैं अच्छा बिजनेस करने लगा. फिर व्हाट हैपेंड, अगर मैंने उस टाइम एक्सिस बैंक छोड़ दिया तो शायद आज मैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे नहीं होता. बिकॉज जिस मैडम ने मेरे को हायर किया था, शी इज गेटिंग मैरिड एंड शी वांटेड टू शिफ्ट टू नोएडा. So they want someone internally who are doing good. So they have selected 7-8 candidates who joined Axis Bank recently to join HR team. Because internally जल्दी हायर हो जाता, मैं कोई बाहर से हायर करते उनको 3 महीने लगता. तो मैं HR इंटरव्यू देने के लिए गया. तो आफ्टर सी चेंज कैसी होती है लाइफ. मेरे पास कॉल आया HR का, जो मिस्टर मुदित थे, कि HR में आएगा. मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊंगा सर, क्यों नहीं आऊंगा. बोले तूने HR से MBA तो नहीं किया. मैंने नहीं किया, बट आई नो व्हाट इज द ग्राउंड, आई नो व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रांच. तो जब मैं हायरिंग करने बैठूंगा और आपके साथ सीखूंगा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी वांट इन ब्रांच. बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं HR बहुत रूड होते हैं. बिकॉज उनको क्या है, अगर मैं कोर HR का बंदा होता हूँ तो आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज ग्राउंड, व्हाट डिफिकल्टीज माय स्टाफ आर फेसिंग इन ग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ challenges they are facing. बट मैं ग्राउंड से काम कर आया तो मुझे पता था. जब हम HR का इंटरव्यू देने गए तो आई गॉट अ कॉल एंड दे टोल्ड कि डोंट टेल योर बॉस कि आप HR का इंटरव्यू देने लखनऊ आ रहे हो, जस्ट टेक अ लीव एंड कम. हम चले गए लीव लेके. 7-8 लोग मुझे मिले जो रिसेंटली मेरे साथ ही ज्वाइन किए थे आसपास. तो हम लोग को वी आर नॉट अवेयर कि क्या होने वाला है. तो वी गॉट टू नो दैट ज्योग्राफी हेड इज कमिंग फॉर एन इंटरव्यू. और हमने किसी ने ब्रांच में नहीं बताया था. वी यूज्ड टू गो टू सर्कल ऑफिस. वहां पे किसी ने देख लिया मुझे और मेरे ब्रांच हेड को कॉल कर दिया कि भरत इज सिटिंग एट सर्कल ऑफिस. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रांच हेड कि कहाँ है. मैं सर मैंने तो छुट्टी पे हूँ. मेरे सर्कल ऑफिस में क्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तेरे को छुट्टी उट्टी चाहिए तो मुझसे ले लेना, बट डोंट टेल एनीथिंग. सी जैसे ही सर्कल ऑफिस में आ जाता है ना तो लोगों का चेंज होता है. कह रहे हैं तो हेड्स के पास बैठा तो तू मेरी शिकायत मत कर देना कि मेरी नौकरी चली जाए. तो मैंने नहीं सर, आई डोंट नो, दे टोल्ड कि आप छुट्टी लेकर आ जाओ. बोले प्लीज इंश्योर कि कुछ होना नहीं चाहिए, तेरे को छुट्टी उट्टी चाहिए, तेरे को घर जाना तो चले जा, तो प्रेशर मत ले, तो भी नया बंदा है. सी वो ऐसे डर गए. फिर जब मैं इंटरव्यू, हम जब 7-8 लोग बैठे थे तो वी आर इंटरेक्टिंग. तो आई एम चेकिंग कि आपका MBA कैसे है. तो देयर आर 2-3 गर्ल्स, 2-3 बॉयज,
वी आर फ्रॉम HR एंड आई एम ओनली फ्रॉम फाइनेंस। मैंने बोला ले तो फालतू में इतना खर्चा हो गया, यहाँ पे आ भी गए तो HR वाला बंदा बैठा तो मेरा सिलेक्शन क्यों होगा? तो दे वांट कि 7-8 लोगों का इंटरव्यू हो जाए सो दैट एक सिलेक्शन हो जाए। तो उस टाइम हारी मान गए। इंटरव्यू हुआ, फिर रिजल्ट ही नहीं आया, फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ, प्रतापगढ़ अपना वही सेल्स बिजनेस बैंकिंग चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। देन एवरीवन गॉट अ मेल वन डे, फाइन डे, कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड वी आर नॉट गोइंग अहेड विद योर कैंडिडेचर। मेरे पास वो मेल नहीं आया, गॉट आई कॉल HR, तो HR ने कॉल नहीं हुई, जो यूजुअली HR उठाता नहीं है, जो लोगों के कंसर्न होते हैं कि HR कॉल नहीं उठाता। I called him twice, thrice रात में, sir I did not get a mail, but everyone others who attended got a mail। तो बोलते तेरे को भी वही मेल चाहिए? बोले नहीं, I don't want that mail। बोले तेरा सिलेक्शन हो गया, just wait for your transfer orders। So this is how, अगर मैंने उस टाइम अपना सीधा moral of the story कि अगर उस टाइम में 7-8 महीने में हार मान गया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता and I'm not interacting to you people, है ना। So you have to understand कि destiny आपसे जो करा रहा है और आप जहाँ पे जा रहे हो, if you're flowing with the river, you are going in the right way। If you're flowing opposite the river तो मुश्किल है, because opposite river में चलने के लिए करंट उधर से आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो it is very difficult। वो आउट ऑफ 100 एक बंदा उसको क्रॉस कर पाता है, 99 फेल हो जाते हैं। You have to flow with the river, correct? So this is the story, otherwise मैं आज यहाँ नहीं होता। Then आज की डेट में मैं जब समझाता हूँ या जब मैं समझता हूँ कि यार मैं क्या बेवकूफ़ी करता था, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि प्लीज डोंट डू दैट काइंड ऑफ बेवकूफ़ी। कि नहीं, मैं नहीं, अगर मैंने कॉल नहीं लिया होता, मैं लखनऊ नहीं जाता, मैं अपना करियर स्टार्ट नहीं करता, तो शायद आज मैं अभी वही 10-12-15 हज़ार में टहल रहा होता और मैं अपने आप के करियर को या अपने कॉलेज को बोल रहा होता यार काय को MBA कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। और मैं आई एम टेलिंग यू like I did MBA from Barkatullah University, now I am taking interviews for IIM Indore, IIM Ahmedabad, and I visited IIM Ahmedabad, I visited IIM Indore this year with group head। तो आई हैव सीन कि ऐसा कोई चैलेंज नहीं है यार, जब इंटरव्यू में वो भी बैठता है ना तो उसके अंदर कोई सिर पैर या कोई एक्स्ट्रा सीन नहीं लगे। द ओनली पॉजिटिव पॉइंट विद देम इज नॉलेज। उनका नॉलेज लेवल इतना अच्छा है कि इफ यू वांट टू स्पीक टू देम ऑन एनी टॉपिक दे आर रेडी टू स्पीक टू यू। ऐसा नहीं है अभी आई स्टार्टेड टॉकिंग टू एनीवन ऑन से बैंकिंग टॉपिक और करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, व्हाट आर द चेंजेस रिसेंटली, दे आर नॉट अवेयर बट दे पीपल आर अवेयर। और उनका अवेयरनेस कैसे हो रहा है? They are aware through social media, through WhatsApp, through applications available in phone। वो आपके पास भी है, but where we are killing, हम PUBG खेल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों से WhatsApp कर रहे हैं, हम शाम को मीटिंग्स कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो इस चीज को भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं ना तो वो उसको पॉजिटिव यूज करते हैं। उनके टीचर्स भी तो यही बोलते हैं आपको असाइनमेंट करना, आपके टीचर्स भी बोलते हैं असाइनमेंट करना है, बट हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट स्क्रिप्ट से डाउनलोड कर लेते हैं कि भैया कहीं से मिल जाए, सबमिट करना है, दिस इज माय जॉब। वो अपने असाइनमेंट्स को सीरियस लेते हैं। अदरवाइज यार वो भी वही लोग हैं ना, शायद आप में से जिसने कैट क्लियर कर लिया होता आप IIM में होते तो आप बहुत डिफरेंट होते। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द चेंज? वो बुक्स आप भी पढ़ रहे हो, वो बुक्स आपको भी अवेलेबल है गूगल पे, वही बुक्स उनको भी अवेलेबल है और उनको कोई अलग से कोई बादाम तो खिलाई नहीं गई है। सो द ओनली प्रॉब्लम इज अवर माइंडसेट कि वो IIM अहमदाबाद का है। जब मैं पहली बार IIM इंदौर गया इंटरव्यू लेने तो मैंने खुद ही सोचा कि आई एम फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, हाउ वुड आई फेस IIM कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू। बट जब वो इंटरव्यू रूम में आया एंड आई एम सिटिंग विद माय ग्रुप हेड, लाइक हु इज ग्रुप हेड वर्किंग विद HDFC बैंक फ्रॉम लास्ट 20 years, उनका नॉलेज, आई हैव 10 years of experience, और कैंडिडेट हु इज कमिंग either a fresher or carrying a 2-3 years of experience, but the confidence he is carrying because of IIM, तो वो कॉन्फिडेंस उनका इतना पॉजिटिव होता है कि आपको लगता है कि दिस इज द गाय आई कैन हायर हिम। सी द कॉन्फिडेंस इज मिसिंग अस कि यार हमने प्रेस्टीज से कर लिया, यार मैं ग्वालियर का हूँ। सी पीपल यूज्ड टू टेल सर मैं तो गांव का हूँ, मैंने तो ना सर मैं भिंड का हूँ, भिंड में तो ऐसा हो गया। सर व्हाट अबाउट भिंड? यार भिंड का बंदा भी तो IIM अहमदाबाद ही जाता है और भिंड का बंदा ही तो बैठा हुआ आज। आई एम टेलिंग यू योर क्लस्टर हेड जो मेरे हैं, ही इज फ्रॉम टीकमगढ़, माय जोनल हेड इज फ्रॉम इंदौर, ही इज मैनेजिंग एंटायर मध्य प्रदेश। मतलब मैं आपको उनका अगर रफ फिगर भी बता दूं सैलरी का तो आप सोचोगे कि किस टाइप की सैलरी वो ले रहे हैं। सो important is कि you have to make yourself understand कि आपके लिए क्या जॉब रोल है। and I am telling you everyone is not meant for sales, है ना। और ऐसा नहीं कि हर जगह सेल्स का प्रोफाइल है, but then you have to start understanding कि आप किस चीज के लिए अच्छे हो। what happens जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, 3rd सेम में आ गए, जैसे 4th सेम आ जाएगा, आपके प्रेशर है, मेरे को जॉब चाहिए, फिर उस टाइम आपको क्या लगेगा कि यार द ओनली ऑप्शन इज कि भाई अभी तो जॉब ले लो, वो HDFC में मिलता है, एक्सिस में मिलता है, किसी में मिलता है, मेरे पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है और जो हमको चाहिए होता है, और फिर कॉलेज के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई अभी तो प्लेसमेंट कराना है, तो आप फिर गलत जगह लैंड हो जाते हो। गलत जगह लैंड हो गए तो डेफिनेटली यू विल लीव द जॉब इन नेक्स्ट 5-7 months।
और इनिशियल 6 months इन एनी जॉब इज वेरी डिफिकल्ट वे. आप जब कॉलेज ज्वाइन किए थे ना तो दोस्त तुरंत तो नहीं बन गए थे, 3-4 महीने तो आपको भी वहाँ दोस्त बनाने में लग गए थे, तभी तो आज 2 साल में तो इतना अच्छा हो जाता है कि बहुत सारे लोग तो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं. बहुत लोगों की दोस्ती ऐसी होती है जो लाइफ टाइम चलती है, बट वो इट विल टेक टाइम. तो आपको ऐसी जॉब को टाइम देना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड वंस यू ज्वाइन अस और ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती. वहाँ पे यू आर इनटू जंगल, यू आर प्रोफेशनल, यू आर कॉस्ट टू कंपनी. ठीक है, तो इफ यू आर कॉस्ट टू कंपनी यू हैव टू जस्टिफाई. सो इट इज जंगल रूल. ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेटली बैंक विल गिव यू ऑल ट्रेनिंग, बैंक विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि करना क्या है, कैसे करना है, बट कस्टमर आपको ही लाने हैं. ठीक है. और करंट सिनेरियो में अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए जो डिजिटली एक्टिव है, जो डिजिटल चीजें जानते हैं. बिकॉज पीपल हु आर नॉट डिजिटली एक्टिव, पीपल हु डोंट यूज हाउ टू यूज एप्लीकेशंस एंड ऑल, तो वो आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना. बिकॉज इफ यू सी लॉकडाउन में मेरे पेरेंट्स भी जियो मार्ट और ये सब चलाना सीख गए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि वो बाहर जाके ग्रोसरी लेकर आए. So change is the only rule which you have to accept. ठीक है. और what I can tell you, banking is something, अगर आप अपना करियर देखते हो तो there are people working with bank from last 25 years. You know, recently HDFC Bank has announced one news that our MD is going to be retired in October 2020, and someone from internal is taking over. You know who is taking over as MD for HDFC Bank effective October? Anyone? चैट में आंसर दे सकते हो आप. सर शशिधर शशि, हाँ, मिस्टर शशि Jagdishan, correct? You know, he is with bank from last 25 years. He joined bank as a manager for finance department. Now he is MD. So you see the kind of growth. ठीक है. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो दैनिक भास्कर के अलावा भी पेपर्स पढ़ते हैं? करेक्ट. I got the answer. Thank you. दैनिक भास्कर के अलावा भी कितने लोग पेपर्स पढ़ते हैं? आपकी सी, अगर आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओवरनाइट नहीं होगा कि रात को शिखा बोलेगी कि कल HDFC आ रहा है तो आपने घोट लिया और आपको सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पता चल जाएंगी, RBI में क्या चल रहा है, SEBI में क्या चल रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल. द हिंदू भानु पढ़ता है. ओके, ग्रेट. सो आई थिंक आई एम डन. कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं ज्ञान तो आपको बहुत दे सकता हूँ, ज्ञान मेरे पास बहुत है, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रियलाइज, अंडरस्टैंड दिस इज द बेस्ट टाइम. 6-8 महीने और बचे हैं. इफ यू ग्रूम योर सेल्फ, इफ यू पुट थिंकिंग योर सेल्फ कि आपको कहाँ जाना है, व्हाट इज योर पाथ एंड वेयर यू वांटेड टू हेड, सो डेफिनेटली यू कैन सक्सीड. जस्ट डोंट गो बाय कि आई belongs to this place, that place, my family background is this type, that type. सब bullshit है ना. This is all you, कि आपको क्या करना है. अगर family background खराब होता तो you people are not here into Zoom from your own laptop or own application, mobile, smartphone, है ना. और आप प्रेस्टीज या ग्वालियर के किसी दूसरे कॉलेज से MBA नहीं कर रहे होते अगर family background इतना खराब होता. तो parents को जितना करना था they have done for you, they will definitely do for you, but now it is your turn to do something good and something proud for your parents. ठीक है. And you are the one, you can change your destiny. ठीक है, भले ही छोटे से घर से हो या बड़े से घर से हो. There are people from business background, they wanted to build their own career and they are doing wonders in job. ठीक है, irrespective of gender, we used to hire, है ना. If you go to my branches, you will find a male guy, a female guy. And I am telling you, one of college from Indore, I hired 8 students from there. Out of 8, I have 3 male candidates and 5 female candidates. Correct? मैंने उनके TPO से पूछा, जैसे मैंने आपके TPO से पूछा था आपके करंट बैच के लिए, कि प्लीज चेक, क्रॉस चेक कि आफ्टर दिस सिचुएशन कितने बच्चे रेडी हैं लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी को लेके. तो आई गॉट कि 1-2 लोग बैकआउट हुए. सेम कॉलेज में जो इंदौर का कॉलेज था, जहाँ पे मेरे पास 3 मेल कैंडिडेट थे और 5 फीमेल. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यार जो फीमेल कैंडिडेट है डेफिनेटली उनके पेरेंट्स मना कर देंगे कि इफ यू विल गेट इंदौर, टेक द जॉब, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट इंदौर, लीव द जॉब. सो
what response I got from TPO, documented response over the mail, that all 3 male candidates, उनके parents ने बोला if you are getting Indore तो ही job करना, otherwise leave the option. And all female, उनके parents ने बोला कि wherever you are getting job, just take the opportunity. ठीक है, तो ऐसा भी है. तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं यहाँ कैसे जाऊंगी, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी. यू टू अंडरस्टैंड एज अ रिक्रूटर और एज अ बैंकर और एज अ HR पर्सनल, व्हेन वी यूज्ड टू गिव लोकेशंस टू यू, एनी HR, वी ऑलवेज टेक केयर कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी रहे. ठीक है, ये बेनिफिट लड़कों के साथ थोड़ा सा कम होता है, but definitely when we used to place our female candidates, so because you are joining our family na, so you are our responsibility, so we used to take care. But yes, definitely if everyone is looking कि मेरे को ग्वालियर या मेरे को इंदौर या मेरे को भोपाल मिल जाए, it is not possible for any recruiter कि ऐसा हो जाए. ये चीज हो सकती है मुंबई में, अगर आप जाके मुंबई ज्वाइन करो, but you have to understand once you start your career, Sorry. yeah, है ना. और जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो सी मुंबई में अपना करियर स्टार्ट करना विद अ स्मॉल सैलरी इज वेरी डिफिकल्ट. तो जो जॉब यहाँ मिल रही है या जो कॉलेज आपकी हेल्प कर रहा है, एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इट्स नॉट ओनली HDFC. व्हाट आई हैव सीन कि अभी मेरा एक्सेस में हो गया, बट HDFC इज कमिंग, तो आई वांट टू जॉइन HDFC. मेरा HDFC में हो गया, एक्सेस इज कमिंग, तो मैं एक्सेस में जाना चाहता हूँ. सी यू टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी, आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम छाबर एंटरप्राइजेस, जो अभी है ही नहीं, मतलब अभी एग्जिस्ट करता है, शायद उसका नाम वोल्गा हो गया है. दे आर जस्ट लोकल वेंडर. अगर आप भोपाल जाओगे कभी, तो भोपाल में MP नगर में जो ब्रिगनेनी है, जो अपना MP गवर्नमेंट का वो है आउटलेट है ब्रिगनेनी करके, वो भोपाल वाला आउटलेट न्यू मार्केट का पूरा मैंने बनवाया है. मैं वहाँ दिन भर बैठा रहता था और वो पूरा मैंने बनवाया था. आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर आफ्टर डूइंग MBA इन फाइनेंस. बट बस मुझे उस टाइम पे अपने आप पे एक ही चीज अच्छी लगती है कि आई हैव टेकन द चैलेंज एंड स्टार्टेड. मैंने वेट नहीं किया कि मेरे को 3 लाख या 5 लाख का पैकेज मिलेगा तो ही मैं अपना जॉब स्टार्ट करूंगा. गाइस, आई एम टेलिंग यू, देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम बिकॉज वो सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने MBA किया है तो मैं सीधे मैनेजर का ही जॉब करूंगा. सो लाइफ इज नॉट दैट ईजी. ठीक है, आज की डेट में मेरे पास जो IIM का बंदा ज्वाइन करता है ना, वो भी सेल्स में ही आता है. डेफिनेटली उनकी सैलरी और पैकेज में डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं आगे जाके मैच हो जाता है. ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट योर करियर. जस्ट डोंट वेट कि मेरे को मेरे मन का मिलेगा तो ही करूंगा. तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. इफ एक बार घुस जाना है, उसके बाद ही तैरना सीखना है. ठीक है, आई टोल्ड यू माय स्टोरी एंड दिस इज माय रियल स्टोरी. I want to go through my LinkedIn profile. You can check कि मैंने कहाँ जॉब किया है. If you want my CV, I can give you CV. जो मैंने किया है वो मैंने दिखाया है. So this is truth. और अगर शायद मैंने उस टाइम हारी मांगी होती तो शायद आज मैं इस लेवल पे नहीं होता कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता, कहीं और होता. डेफिनेटली लाइफ कहीं ना कहीं तो लेके जाती, बट जहाँ लेके जा रही है अभी करंट सिनेरियो में, प्लीज टेक इट पॉजिटिवली. एंड यू पीपल आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज मेरा तो थोड़ा ज्ञान सेशन हो गया. But so any students have any kind of question, please come up with it. Yes, sir. Hi, sir. This is Krishna. Yes, Krishna. Sir, my question is that necessary that finance background for any bank sector? If we are doing a marketing at HR, then can also join a banking sector? See, banking is something I am telling you कि मेरे पास तो MBA और BCom से ज्यादा इंजीनियर्स आते हैं. ठीक है, और मैं इंजीनियर्स भी लेता हूँ. तो बैंकिंग इज वन प्लेस जहाँ पे इट इज ओपन टू ऑल, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल कि वो रोबोट बनाएंगे और वो रोबोट उड़ जाएगा या रॉकेट बनाएंगे. आई वांट पीपल हु आर एग्रेसिव, हु आर गुड एट टॉक, हु आर इम्प्रेसिव, जो कस्टमर के सामने बैठ के बात करके चीजों को समझा सके. तो आई वांट अ टॉकेटिव पीपल, है ना, और जिसको अंडरस्टैंडिंग हो. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं आपको सेविंग अकाउंट का फीचर समझा रहा हूँ, आप कस्टमर को करंट अकाउंट बता रहे हो, सो यू आर यूजलेस फॉर मी. ठीक है, तो बैंकिंग इज वन प्लेस ओपन फॉर ऑल. मिनिमम रिक्वायरमेंट इज फुल टाइम ग्रेजुएशन, even with 50%, and the people with 50% are even doing good. It is, and the best part is those who join bank at the age of 22, by the age of 32 वो अपने आप को कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर हम बैंकिंग करियर से स्टार्ट 30-32 में करेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक 42. तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. व्हाट विल हैपन, आपका ब्रांच हेड जो होगा वो 28 इयर्स का होगा, और अभी आपने 5 साल और लगा दिए कि मैं बैंकिंग कोचिंग कर रहा था, तो उसके बाद वापस आप यहीं पे लैंड हो गए, तो अभी तो जॉब आपको अभी भी मिल जाएगी. तो बैंक इज ओपन टू ऑल. इट इज ऑल योर पर्सनालिटी कि आप कितना क्रैक कर सकते हो. अगर आप कस्टमर से बात करना अच्छा लगता है आपको,
आप चीजें समझते हो, if you're interactive, you are welcome to banking industry. Great, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Arey. Okay, Good come afternoon, one sir. by one. Good afternoon, sir. I am Sumit Kushwaha. Yes, Sumit. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि स्टार्टअप करना जरूरी है, जैसे कम सैलरी है वो मायने नहीं रखती. करेक्ट. बट आज के टाइम में जैसे कोई कंपनी 10,000 12,000 ऑफर करे, तो बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है कि भाई ये तो हमारे यहाँ की इतनी सैलरी तो हमारे यहाँ के लेबरों को मिलती है, तो हम कैसे स्टार्ट करें इस कंपनी में इतनी कम सैलरी में, हम MBA करने के बाद में क्यों करें ज्वाइन? But you tell me, after doing MBA, जो 10-12 हजार की सैलरी लेबर को मिल रही है, are you ready to take the job of labor? No. No. Correct. और वो लेबर, you have to understand long term point of view से कि वो लेबर 10-12 हजार से 15 हजार पे पहुंचेगा. But when you start from 10,000, 10 or 12,000, you will reach to any point, any level. Correct. You have to start. अगर आप ये सोचोगे कि मेरी सैलरी फर्स्ट सैलरी 1 लाख होगी, तो देयर आर चांसेस कि रिटायरमेंट आ जाएगा, बट सैलरी 1 लाख नहीं हो पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, तो रिटायरमेंट कैसे आएगा? ठीक है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद लेबर यार. आज की डेट में मेरे घर में वो जो काम कर रहा है प्लम्बर, उसने बोला 800 रुपए लगेगा 2 नल लगाने का. मैंने बोला वाह, तेरा 2 घंटे का काम 800 रुपए, बट मैं वो स्टार्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ कि मैं 2 नल लगा दूं जाके घर और 800 रुपए ले लूं. ठीक है, तो आपने MBA क्यों किया भाई? तो तू फिर बीकॉम करके, बीकॉम की भी जरूरत नहीं थी, 10-12 के बाद भी कर लेता, 800 रुपए तो तेरे को तब भी मिल जाते. Yes, sir. करेक्ट. तो थिंक बिग. Yes, sir. 10-12 हजार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. उसके बाद ही जब तू 12 हजार की जॉब करेगा एंड देन यू कम टू अस कि सर मेरा ये एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस, तो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट, तेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या कि बंदे ने काम किया मार्केट में, मेरे लिए अच्छा बंदा है, तो मैं तेरे को 10 से 20 हजार रुपए दूंगा. जब मैंने 6 हजार से जॉब स्टार्ट किया तो 6 से 8 मिला, 8 से 19 हजार रुपए मिले. Yes, sir. राइट. अगर मैं सोचता 19 हजार मिलता तो मेरे तो हायरिंग ही नहीं हो पाता. Yes. ठीक है. Thank you. Yes. Next. So good afternoon. Good afternoon, sir. Akriti Sharma this side. Yes, Akriti. So first of all, I was searching you on LinkedIn. So I didn't found you. मेरे नाम की स्पेलिंग में आपको भरत में एक एक्स्ट्रा टी लगाना पड़ेगा, तो विल फाइंड. Okay, sir. So I really wanted to ask you that you told us that while you were working, you were applying for the other jobs also at that point of time. Correct. So what was your main approach at that point of time? Because while working in another company or in another bank, we are not able to apply or go to the interviews. So what was the main approach you were taking at that point of time? Like you were sending the resumes to the companies, or you were just using the apps for the other jobs? So because it was very difficult at that point of time that we are working in a company and then we are applying for the other jobs also. See, the important is कि initially I have taken the opportunity, whatever comes to me. जो मेरे पास आया वो मैंने ले लिया, correct? But मेरा aim था कि अभी मैंने MBA कर लिया, मैं finance से हूँ, marketing से, तो I wanted to stable my career. तो जहाँ पे मैं job कर रहा था, I know कि वहाँ पे मैं अपना career stable नहीं कर सकता, but for bread and butter and for my learning, practical point of view, मुझे जॉब तो कंटिन्यू रखनी है, अभी नहीं मिलेगी जब तक इंतजार नहीं कर सकता था. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी, kept applying, and then I got an opportunity with banking and I wanted to pursue my career with banking. वो मैंने पहले ही सोच के रखा था. The day I got a banking job, अगर if you see, मैंने एक्सिस बैंक में 5 years continuous जॉब किया, then I got an opportunity कि चलो मेरे को घर आने का ऑप्शन मिला, तो I have taken मध्य प्रदेश, otherwise I am managing entire उत्तर प्रदेश. उस टाइम मेरे पास 45 ब्रांचेस, 103 ब्रांचेस थी. बट द ओनली ऑप्शन इज कि अगर मैंने शायद यहाँ से स्टार्ट नहीं किया तो एक्सेस ने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं किया होता कि मैं बंदा ही फ्रेशर हूँ, बट दे वांट सम फ्रेशर, दे डोंट वांट फ्रेशर गाय. सो दैट इज व्हाई. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना करियर कहाँ स्टेबल करना है. इफ यू वांटेड टू परस्यू योर करियर इनटू बैंकिंग और आपको इनिशियल बैंकिंग से मिल गई, तो यू कीप कंटिन्यू विद द फर्स्ट जॉब. व्हाट आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट जॉब एटलीस्ट 4-5 years का एक्सपीरियंस जरूरी है. अगर आपको टाइमली ग्रोथ मिल रही है, कंटिन्यू करो. टाइमली ग्रोथ नहीं मिल रही, मार्केट इज ऑलवेज ओपन एंड मार्केट वांट पीपल विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, नॉलेज, सेल्स एंड एवरीथिंग. बट हम जो होप करते हैं जॉब हर 6 महीने में, 8 महीने में, तो देयर आर 18 बैंक्स. अगर आप 10 बैंकों में जॉब करना चाहते हो और 10 बैंक हॉप कर लोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा. तो करियर स्टेबिलिटी आपको ऐसे दिखेगी, बट स्टार्ट करना जरूरी है. अभी आप सोचो कि नहीं माय ड्रीम जॉब इज बैंक, बट आपको FMCG में मिल गया तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो आप कहीं लैंड ही नहीं करोगे. करेक्ट. Okay, sir. Thank you.
So do we have any more question? Good afternoon, sir. Yes. So Abhishek Pathak this side. Sir, my question is that for applying in the banking sector, sir, we have to very good at calculations in mathematics. You have to be good in plus minus or into, correct? Multiplication. ये तीन चीजें is important. बाकी everything is on computer. Excel में डालो, you have all softwares आपने Excel में डाला and things will come into front of you, correct? अभी आपको कस्टमर को पेन पेपर में नहीं समझाना पड़ता कि सर 2 + 2 = 4, कस्टमर नोज. हाँ, बट कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए कि बेसिक क्वेश्चंस का आंसर हम फटाफट कर पाए. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये नहीं पता कि 2 + 2 = 5, करेक्ट? तो एवरीथिंग इज ऑन सिस्टम. तो आपको डिजिटली बहुत साउंड होना पड़ेगा, सिस्टम साउंड होना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट अवेयर कि एक्सेल कैसे चलाते हैं आफ्टर डूइंग MBA ऑफ 2 years कोर्स, तो वो मुश्किल है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत जरूरी है. अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इट विल हेल्प यू टू लैंड द जॉब, बट जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अंडरस्टैंडिंग टू इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ योर MBA कॉलेज की बाहर क्या हो रहा है, वो समझना हो, वो जानना, और उसकी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर का मार्केट कैसा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं भी जॉब पे लगोगे. से फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक ग्वालियर में आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप ग्वालियर में बहुत अच्छा काम कर लोगे? इफ यू टच एनी कस्टमर, आपको क्या लगता है कि 10 साल 20 साल से हम HDFC बैंक MP में है और 10-12 साल से ग्वालियर में है, तो कोई एक ऐसा कस्टमर होगा जिसको अभी तक हमने टच नहीं किया होगा? हर ऐसा कस्टमर होगा जिसको हमने टच कर लिया होगा. तो आपके पास तो यही एक्सक्यूज रहेगा कि सर जहां जाता हूँ वहीं HDFC बैंक का कस्टमर है, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? बट स्टिल बैंक वांट बिजनेस. यस सर. ठीक है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कि बाहर का मार्केट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है. कस्टमर की डिमांड है कि उसको लोन चाहिए, हम उसको बेच रहे हैं इंश्योरेंस, तो डिफिकल्ट है हमारे लिए, हम नहीं कर पाएंगे. कस्टमर की डिमांड अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उसके लिए आपको बाहर का मार्केट नॉक. आज की डेट में से कोविड सिचुएशन के बाद कस्टमर की क्या डिमांड है? आपको क्या लगता है कि आज की डेट में बैंकिंग के कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है? सर हेल्थ इंश्योरेंस. एकदम से कस्टमर को लगने लगा ना कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो यार, कितना जरूरी है. कोविड हो गया तो 5-7 लाख से नीचे तो उतर ही नहीं रहा है आदमी. बट आपको लगता है कि कोई आपको हेल्थ इंश्योरेंस अभी दे देगा कि कोई बात नहीं, तेरे को कोविड हो गया तो तू 2000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले ले और 10 लाख का क्लेम कर ले? नहीं ना. नो सर. तो यही चीज कस्टमर को हमको पहले बतानी थी. जिस कस्टमर ने मार्च में लिया होगा और से अगर उसको जरूरत पड़ गई तो ही इज द हैप्पीएस्ट वन कि मैंने मार्च में जो प्रीमियम भरा हो 10,000 का, उसके कारण मेरा 5 लाख रुपए बच गया. दैट इज व्हाट अवर जॉब इज, टू मेक कस्टमर अंडरस्टैंड कि सर ये आपके लिए जरूरत है, और आपको जरूरत क्रिएट करनी पड़ती है. कोई भी कस्टमर, जब आप लोन देने जाओगे तो कस्टमर को चाहिए, लेकिन जब आप पैसा मांगने जाओगे तो कस्टमर बोलेगा नहीं होगा ना. पैसा मांगना इज सबसे डिफिकल्ट जॉब. जब आप किसी को लोन देने जाओगे कि आप पर्सनल लोन ले लो, तो बोलेगा हाँ हाँ दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है. पैसा तो सभी को चाहिए, बट जब पैसा लेने जाओ तो इज डिफिकल्ट. तो कस्टमर की नीड अंडरस्टैंडिंग है ना. अभी तो रिक्शा वाला तेरे सामने आके बैठा तो उसको बोले कि सर आप कार लोन ले लो. अरे रिक्शा वाला अपनी बड़ी मुश्किल से ब्रेड एंड बटर चला रहा है, उसको कार लोन बेचेंगे तो मुश्किल है ना. तो प्रोफाइलिंग ऑफ कस्टमर इज इंपॉर्टेंट. और बैंक आपको यहाँ तक का ऑप्शन देता है कि इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, you can put in my customer ID and can understand कि what kind of transactions I am doing, what is my worth, what products you can pitch. बट वो सारी चीजें कि आप करो. तो जैसे कॉलेज तो आपको पूरी लाइब्रेरी दे के रखा है ना कि ये बुक भी पढ़ ले, वो बुक भी पढ़ ले. हम तो वही 2020 पढ़ते हैं, है ना. यस सर. थैंक यू सर. Sir, हाँ जी. sir, which type of the qualities do you see at the time of hiring new freshers in your bank? Special qualities. Your confidence level, your understanding कि आपने क्या पढ़ाई की है, your understanding to your summers project. ठीक है. See, when I used to hire for Madhya Pradesh, I don't want कि आप मेरे को फराटेदार इंग्लिश बोलो. I don't want people with good English, because अगर मैं आपको भिंड में पोस्टिंग दे रहा हूँ और आप भिंड में जाके कस्टमर से बोलने लगे हेलो this is so and I am from bank and I want say relationship with you, तो कस्टमर मार के भगा देगा आपको कि बात क्या कर रहा है. ठीक है. तो आई वॉन्ट अ पर्सन जो लोकल प्लेयर को, जो भिंड वाले बंदे के साथ ठेले पे खड़े होकर चाय पी के उसको समझा सके कि बॉस HDFC बैंक है यहाँ पे, इफ यू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट विद अस विल गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सेफ है, सिक्योर है. ऐसा बंदा चाहिए. सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, है ना. और मैं आपको डेफिनेटली चेन्नई नहीं भेजने वाला जहाँ पे लैंग्वेज ही डिफरेंट है. अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू रिस्पॉन्ड ओवर द मेल्स, you have to fill the forms, you have to respond basic queries.
जो बेसिक बैंकिंग के लिए इंटरनल जरूरत है। लेकिन जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो जो कस्टमर इंग्लिश समझता ही नहीं है, उसको हिंदी समझाओगे, इंग्लिश में समझाओगे तो कोई फायदा नहीं है। सो योर कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, है ना। हिंदी बोलने, मिस्टर मोदी को देखो, वो तो कहाँ कहाँ जाके हिंदी बोल देते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि जिसको समझ में नहीं आता वो भी ताली बजा देते हैं, करेक्ट। तो आपको अपने वर्ड्स में एंड वट एवर यूर टॉकिंग, सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर अभी क्या है कि हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज रहते हैं ये रहते हैं कि सर मैं इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी मैं प्रेस्टीज में जब मैंने इंटरव्यू किया तो आई टोल्ड एवरीवन कि यू आर फ्री टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बट एटलीस्ट स्पीक, बोलो। तो आदमी बोलता ही नहीं। हमने जब डिबेट किया था, जो हमने ग्रुप डिस्कशन किया था, ग्रुप डिस्कशन में आदमी हिंदी में भी नहीं बोल रहा है, इंग्लिश में भी नहीं बोल रहा है। इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और हमने बहुत लोगों को ऐसे भी ऑप्शन दिए थे कि हम उनसे वन ऑन वन मिले थे कि माइट बी दे आर नॉट एबल टू टेल और स्पीक ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, बट शायद अकेले बोल पाए। लेकिन वो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले बहुत अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने नहीं बोल पाओगे तो कस्टमर के सामने कैसे बोलोगे। एंड कस्टमर इज ऑलवेज गॉड, है ना। वो तो आपके ऊपर चढ़ेगा, वो आपसे समझेगा, और कस्टमर तो तुरंत बोलेगा। अभी मैं सेविंग अकाउंट समझने के लिए बैठा हूँ और मैंने एकदम से हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक छेड़ दिया, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर कि हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे को क्या पिच करना है, तो आपका कस्टमर खराब हो गया। सो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट इज कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जो थॉट्स है आपके वो मेरे तक करेक्ट पहुंच रहे हैं, वो हिंदी में पहुंच रहे हैं, इंग्लिश में पहुंच रहे हैं, मैथ्स में पहुंच रहे हैं, लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, योर पर्सनल ग्रूमिंग, सर्विस इंडस्ट्री में पर्सनल ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। Okay, thank you, sir. Good afternoon, sir. यस, I want to opt HR as a specialization, so I want to know that will it be difficult for me to begin आपकी my आवाज career इज as a वेरी banking वेरी लो, कैन यू प्लीज You are not audible. Yes, sir. Yes, sir. So I want to know that being an HR person, will it be difficult for me to begin my career as a banking person in comparison of a finance person, or my communication skill and understanding skill for the people will be enough? नहीं, सी इफ यू आर टेकिंग एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट सिनेरियो, यू सी ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन थिंग व्हिच इज वेरी ट्रिकी। अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि आपको किसी बड़े बैंक में तुरंत कोई बड़ी जॉब है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सीधे एचआर रख ले। पीपल यूज्ड टू हायर ह्यूमन रिसोर्सेज, बट मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज स्टार्टेड देयर करियर फ्रॉम कंसल्टेंसी, करेक्ट। कंसल्टेंसी से स्टार्ट करते, बिकॉज एचआर अगर आप समझो तो एचआर में भी बहुत सारे options है। We have compensation, we have employee relations, we have recruitment, we have business partnering। तो आप किस में जाना चाहते हो, बट एचआर में रिक्रूटमेंट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बट गुंजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली यू आर फ्रॉम इधर ग्वालियर और मध्य प्रदेश, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज तो आपको अपने रीजन समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश एज अ रीजन और से छत्तीसगढ़ एज अ रीजन, opportunities are very less in human resources. You have to understand, like I Bharat Bandhu as a HR managing entire Madhya Pradesh for retail branch banking, where I am managing portfolio of 1600 people with 175 branches. तो अभी मेरे को कोई हैंड नहीं मिल रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल है करेक्ट जगह पे इन होना। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हो लोकेशंस को लेके, इफ यू आर फ्लेक्सिबल कि नहीं मैं बैंगलोर भी जा सकती हूँ, आई एम ओपन फॉर पुणे, आई एम ओपन फॉर मुंबई, एंड रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम a very ground level and then climb the ladder, so HR is very lucrative। बट अगर आप सोचो कि नहीं मेरे को ग्वालियर या भोपाल या इंदौर में HR का जॉब मिल जाए और मैं यहीं पे ग्रो कर जाऊं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड जो सेल्स पर्सनल है, जो मेरी ब्रांचेस है, वहां पे आई नीड स्टाफ ऑफ 5 to 10 पीपल। बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आज मैं 1800 लोगों का पोर्टफोलियो मैं अकेला मैनेज करता हूँ, ठीक है, विद वन सपोर्ट स्टाफ entire Madhya Pradesh। तो I am managing 14 stakeholders, 175 branches। तो हमारा जो hierarchy है वो थोड़ा सा ऐसा है। तो you have to be very very careful while choosing your career option, correct? I agree with you, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Yes, Good Deepak. afternoon, sir. हाँ जी, सर yes दीपक। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर HDFC बैंक अगर हायर करने आता है तो क्या उसमें बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए कैसे क्या प्रोसीजर होता होगा? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए सीधा एकदम फ्रेशर को हायर नहीं किया जाता है। हाँ, सी बिजनेस एनालिस्ट के लिए डायरेक्ट फ्रेशर्स हायर नहीं होते, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट इज अ वेरी डीप जॉब है ना।
वो, और अगर आप देखो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में तो वो चैनल ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज कुछ ऐसे चैनल से लेके, जैसे फाइनेंस की बात करता हूँ, फाइनेंस का जो मेरा ऑपरेशंस होता है पूरा, या मेरा जो पूरा बैकएंड ऑपरेशंस होता है, या ह्यूमन रिसोर्सेज के जो हेड होते हैं, दे ऑल सिट सॉर्ट ऑफ मुंबई। एंड वहाँ पे जो हायरिंग होती है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट से होती है, जो जिनका ऑलरेडी 3-4 साल का वर्क होता है, देन दे डिड MBA फ्रॉम एक्सेलराई और IIMs, उनको होता है। लेकिन आपको लगता है कि if you wanted to go into business analyst role, you can always join HDFC Bank or other bank, और within bank भी ट्रांसफर होता है। से you joined us in the year of 2021 और आपने 2-3 साल बैंकिंग को दिए, then you can internal जॉब पोस्टिंग, जहाँ पे आपको बिजनेस इंटरव्यू करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग समझेगा कि यू आर फिट फॉर द रोल, एंड देन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू मूव आउट। ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हो। एवरी बैंक हैज एन ऑप्शन टू मूव यू इंटरनली। एक बार आप आए, आपने ग्राउंड समझा, चीजें की, देन यू आर फ्री टू टेक अनदर रोल। इट इज नॉट लाइक कि आप मेरे ब्रांच बैंकिंग के रोल पे आ गए तो अभी आप टेलर हो तो टेलर ही रहोगे जिंदगी भर, करेक्ट। बट आप सोचो कि मेरे को सीधे HDFC बैंक या एक्सिस बैंक का बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल जाए, मेरे को डेलॉइट उठा ले और सीधे बिजनेस एनालिस्ट दे दे, तो वो चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कैपेबिलिटी अभी उतनी है नहीं। उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उसके लिए कोई बुक नहीं आती कि उसको पढ़ लो और आपको मिल जाएगा। इधर यू डू ICFA और CFA वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के जो IIM के कोर्स होते हैं, वो करो आप, और फिर डायरेक्ट वहां पे एंट्री लो। ठीक है दीपक, थैंक यू सर। या क्वेश्चन शायद खत्म हो गया। Good afternoon, sir. हाँ जी। So my question is, how we face the question, why should I hire you? Why should I hire you? अभी Yes, sir. ये क्वेश्चन इज वेरी लाइक ओल्ड आउटडेटेड क्वेश्चन। ओके, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अभी आपको किसी Sir, outdated है, but still it's tricky. हाँ, इट्स ट्रिकी। व्हाई शुड आई हायर यू, उसका आपको क्या जवाब देना है? यू शुड आंसर कि बॉस, सी आई एम लुकिंग फॉर अ करियर अपॉर्चुनिटी, एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ कि अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो यू हैव टू टेल कि जो जॉब रोल मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, उस जॉब रोल में हाउ विल यू कंट्रीब्यूट फॉर माय बेनिफिट, फॉर बैंक्स बेनिफिट। आपका बेनिफिट तो हो रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट द सैलरी, बट एज अ स्टाफ how will you contribute? If I tell you why should I hire you for the teller role, so आपको अपनी वो क्वालिटीज काउंट करानी है जो मेरे टेलर में जरूरत है। लाइक यू आर पंक्चुअल, यू आर डेडिकेटेड, है ना, यू आर गुड इन नंबर्स, यू आर गुड इन काउंटिंग, यू आर गुड इन लाइक स्पीकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। तो आई वांट समवन इन माय टेलर काउंटर जो इन सब में अच्छा हो, सो यू आर फिट फॉर माय रोल। और व्हाई शुड आई हायर यू, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अभी कौन किस टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। और अभी तो इट इज ऑल आउटडेटेड क्वेश्चन, बिकॉज इफ आई एम कमिंग टू योर कॉलेज, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपसे क्यों पूछूं कि व्हाई शुड आई हायर यू, यार मुझे बंदा चाहिए, करेक्ट। दैट इज व्हाई आई एम देयर, आई वांट पीपल। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। मेरे को बंदा चाहिए, आई विल क्लोज माय पोजीशन, आपको जॉब चाहिए, बट डेफिनेटली आई वांट बेस्ट फिट गाय। मेरे को ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जिसको सिर्फ नंबर्स के लिए मेरे को चाहिए कि नहीं, आई वांट समवन एट दिस पोजीशन और मैंने उसको क्लोज कर लिया। So you need to explain your qualities as a role, whatever role you are offering, whatever role you are getting. Sir. Thank you so much, sir. Okay. Sir, I have one question. Yes. Suppose, sir, I have got selected in HDFC Bank, and my work is to open account. Suppose, and I ask one customer to मैंने किसी कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप मेरे HDFC बैंक में आप अकाउंट खोलिए, तो उन्होंने बोला कि मैं SBI में HDFC बैंक में खोलने में क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं SBI में मेरे क्या प्रॉफिट था, अगर मैं आपके बैंक में खोलता हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा सर खोलने में? ठीक है, क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान सा आंसर है। अभी वो आपके पास अगर कस्टमर खुद चल कर आ रहा है, इट मींस कि ही इज इरिटेटेड ऑफ से सम PSU बैंक, बिकॉज वहाँ पे सर्विस का प्रॉब्लम है। एंड द ओनली USP विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज सर्विस। वी यूज्ड टू गिव सर्विस, दैट इज व्हाई वी आर बेस्ट। तो आपको बोलना है, सर आप SBI में जाते हो, इफ यू वांटेड टू डिपॉजिट 100 रुपीज इवन, तो यू नीड 2 hours, बिकॉज वहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करता। इफ यू get a tea and a coffee, you will get a personalized services, ठीक है। And service is the only unique point. Otherwise, we are not selling कि आपने मेरे को 100 रुपए दिया तो आपके अकाउंट में मैं 200 रुपए कर दूंगा, कैशबैक आ रहा है, ठीक है। Because we all are governed through RBI guidelines, तो बैंक कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकता।
So the only extra thing what we can give is services. And services कौन दे रहा है? मैं और आप दे रहे हैं. और वो हम और आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे हमें उतना अच्छा कस्टमर मिलेगा. अगर हम भी SBI जैसे हो जाएंगे तो फिर why will customer will come? Because मेरे पास आओगे तो 10,000 रुपए का तो मिनिमम बैलेंस रखना है. SBI तो बोलता है कि 1,500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखो, 2,500 का, तो आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे. कस्टमर का तो ये भी क्वेश्चन होगा कि मैं 10,000 रुपए आपके पास क्यों रखूं? सर सर्विसेज चाहिए. तो आज की डेट में कस्टमर की टाइम की वैल्यू, दैट इज व्हाई प्राइवेट बैंक चल रहे हैं एंड वी आर प्रॉफिट. और अगर आप HDFC की बैलेंस शीट देखोगे तो आई डोंट नीड टू जस्टिफाई HDFC बैंक, करेक्ट? So it is all services, unique services we are giving. That is why customer are associating with us. सर कई तरह के कस्टमर्स होते हैं सर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड हायर क्लास कस्टमर्स. तो आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास कस्टमर्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि मिनिमम बैलेंस 10,000 होता है हमारी डिपॉजिट करने के लिए. सो ऐसे मिडिल क्लास तो चलेगा सर, वो डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन जो और पुअर फैमिलीज होते हैं वो कैसे आपके अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं सर? हो सकता है ना, कस्टमाइज्ड अकाउंट्स होते हैं दोस्त. वी हैव कस्टमाइज्ड अकाउंट. अगर ये कोई मिडिल से कोई लोअर क्लास कस्टमर है, so he don't want an account with n number of transaction options, correct? अगर मैं एक बहुत ही लोअर क्लास हूँ और HDFC में अकाउंट खोला तो वो 1,000 रुपए में भी खुलता है, बट उसकी लिमिटेशंस होती है ट्रांजेक्शन्स की, डिपॉजिट की. तो डेफिनेटली अगर मैं लोअर क्लास हूँ तो मेरे को 10 लाख तो जमा करना नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज पिच. अभी तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट खुल रहे हैं जीरो बैलेंस खुल रहे हैं, एवरी बैंक इज बाउंड टू ओपन, तो वी आर ओपनिंग, बट उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. और अगर मैं मिडिल क्लास हूँ या मैं लोअर क्लास हूँ, और अगर मैं हायर क्लास हूँ, मुझे मिडिल क्लास खोलना है और बिल्कुल लोअर अकाउंट खोलना है, तो आई कैन नॉट डू ट्रांजेक्शन, देन वो अकाउंट मेरे किसी काम का नहीं है. तो एनीवेज आई विल अपग्रेड माय अकाउंट. सो वी हैव कस्टमाइज्ड अकाउंट्स, एवरी बैंक हैज कस्टमाइज्ड ऑप्शंस, बट वो कस्टमर को समझना पड़ेगा कि भाई मेरी नीड है कि मेरे को रोज ट्रांजेक्शन करना है, उसके बाद भी मैं सस्ते के चक्कर में ऐसा अकाउंट खोल लूँ जहाँ पे मेरे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पा रहे. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट? ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. कस्टमर्स आज की डेट में प्राइवेट बैंक्स को खुद ही अप्रोच करते हैं, रीजन बीइंग दे वांट सर्विसेज. टाइम इज मनी ना. मिडिल क्लास बंदा, अगर मेरी जॉब है और मेरे को सुबह नौकरी पे जाना है और मेरे को 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है और मैं SBI जाके अपने 10,000 रुपये जमा करने के लिए 12 बजा दूंगा और मेरे पैसे कट जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है ना. मुझे पता है कि अगर मैं HDFC गया, एक्सिस बैंक गया, कोटक महिंद्रा बैंक गया, तो वहाँ पे मेरे को सर्विस मिल जाएगी, वहाँ पे मेरा RM है, वहाँ पे मेरा पर्सनल बैंक का सेल्स है, who can assist me. That is why I am associated with a private bank. तभी तो मैं नहीं जाता सरकारी बैंक, बिकॉज वहाँ पे कोई सुनता नहीं है. एंड सर्विस इज द ओनली यूनिक ऑप्शन, और सर्विस हम और आप दे रहे हैं. सर्विस के लिए क्या चाहिए? ग्रूमिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, जो मैंने आपको बताया. सी, आपको समझना पड़ेगा दोस्त, बैंकिंग इज समथिंग जहाँ पे आपसे कोई कुछ खरीदता नहीं है. बैंकिंग इज समथिंग, इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप. बिकॉज बैंकर को कैसे होता है ना, जो प्राइवेट बैंकर होता है, जो हम जैसे बैंकर हैं, जैसे आपने सुना है हमारा फैमिली डॉक्टर, ये मेरा फैमिली डॉक्टर है. इफ यू आर हैविंग एनी पार्टी एट योर होम, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हो कि नहीं ये मेरा फैमिली डॉक्टर, तो ही विल ज्वाइन मी इन पार्टी. सेम वेज मेरा बैंकर है, जो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर्स है ना, जो उनके बेस्ट कस्टमर्स हैं, वो उनको अपने हर पार्टीज में, हर ओकेजन्स में इन्वाइट करते हैं एज अ बैंकर, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि ही इज माई बैंकर. सो आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है कि आप फैमिली मेंबर जैसे रहो, तभी तो वो आपको कॉल करेगा, तभी आपकी हेल्प करेगा. एंड बैंकिंग इज समथिंग, इनिशियल 1 or 2 years आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द ग्राउंड, यू हैव टू क्रिएट द कस्टमर बेस. जब आपको 1 साल 2 साल हो जाते हैं ना, तो सारी चीजें ऑटो मोड पे होती हैं. आई हैव मेनी RMs जो ब्रांच से बाहर भी नहीं करते हैं, एंड उनका बिजनेस ऑटो मोड पे होता है, बिकॉज उनको कस्टमर ही कॉल कर देता है, मेरे एक फ्रेंड को चाहिए. सी, इफ आई एम अ मर्सिडीज गाय जिसका एक बंगलो है, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, तो मेरा जो सराउंडिंग्स होगा वो कैसा होगा, करेक्ट? और उस सराउंडिंग से अगर आपको रेफरेंसेस मिलेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमोटिव हो जाएगा. बट वो जो इनिशियल 6 months और ईयर्स टाइम है, वो डिफिकल्ट है, जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई वांटेड टू लीव. एंड लीविंग ऑर्गेनाइजेशन इज द इजीएस्ट ऑप्शन. आप गए, आपने रिजाइन डाल दिया और चले गए. आप बताओ 1,30,000 में अगर मैंने रिजाइन डाल दिया तो व्हाट विल हैपन टू बैंक? HDFC बैंक चलना बंद हो जाएगा? नो, है ना. तो यू हैव टू सेट योर ओन क्रेडिटेबिलिटी. It is all win-win situation. HDFC Bank or any other organization is giving you salary, they're taking job from you. That is contracted, documented, signed. आपने sign किया है, yes, कि मैं ये काम करूँगा, इसके लिए मेरे को salary मिलेगा. Correct? Yes, sir. Thank you, sir. Hello. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sorry to interrupt you in between. Actually, we have
so many questions lined up for the session, and I'm first time seeing so many queries coming across, Mr. Bharat. But the reason could be that you can connect with the student really well and they are happy to hear you. But because of the time constraint, we have to stop this question and answer round. No So issues. I hope you. So No the issues. students who have any query left with, you can write your questions over the LinkedIn, or you can share with us. We'll ask Mr. Bharat to them. Is it fine, Mr. Bharat? Correct. No issues. And I must say, your entire address was very relevant and need of the hour. It was very much on the ground reality that every student might be experiencing right now, or they may come across in coming months as well. So, it was really very nice to have you here, and it will definitely help the student to groom themselves in order to remain ahead, achieve the cutting edge, and excel in their respective field. So thank you again. I'm making my job easy for future. Actually, I'm also hoping that this time student will come with a different mindset, because they know every pros and cons, abs and lows of this industry, and how they should get ready for it. Correct. And I think we have many students who are working with us who are your alumni. So even they can connect and they can tell what is the ground reality, because definitely as a HR, when I tell you that this is the job role, आपको ये करना पड़ेगा, and when you come into the reality, it is very different. HR के guidelines में लिखा रहता है job is from 9:30 to 5:30, but कभी ऐसा होता नहीं है. Please. Agree, हाँ वो होता ही है. वो एक herd mentality होती है that people generally follows. And by chance today at 3 p.m. we have already organizing a session with our alumni, that too in banking sector. So after your session they'll go for that session, so they'll more get understanding on this situation and scenario. So now I would request Ashwini sir to kindly propose vote of thanks, and that so that we can wrap up this session. Thank you. Okay, thank you so much, Rekha ma'am. Am I audible? Yes, very clear. Okay. Okay. Hello. So very good afternoon, Bharat. Good afternoon. A very good afternoon to all the dignitaries, faculty colleagues, and all the participants watching this webinar on Zoom. By this, we have come to the end of the webinar organized under the banner of Training and Placement Cell of Prestige Institute of Management, Gwalior. And I feel extremely privileged to propose a vote of thanks. I would like to extend a very special thanks to our very respected speaker for this webinar, Mr. Bharat Bandua-ji, talent acquisition partner at SDFC Bank, for taking his valuable time out from his very busy schedule and blessing the occasion with his presence. Thank you so much, Bharat sir. Thank you very much. I would like to thank to our head of department, Professor Abhay Dubey, for his continuous support and guidance during the whole journey of this webinar. Thank you so much, Professor. Next, I would like to extend my gratitude to Training and Placement Officer, Professor Shikha Sharma, for her continuous support during the whole webinar. Thank you so much, Shikha ma'am. Also, I would like to acknowledge my gratitude to all the student volunteers for their contribution in the webinar. Thank you to all for the being lovely audience. And now, sir, we are looking forward to continue this professional relationship with your organization in future course of time also. Sure. Yeah. Now, I would like to request Mr. Bharat Bandua-ji to kindly allow us to wrap up the session. Thank you very much. Thank you all for listening me patiently, and I hope this will help you in some ways. Thank you very much, and best of luck. Best issues. Stay safe. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Thank you. Yeah. Bye bye.